welcome back to my channel. Today I am Palakras with you to explain you that what is the use of at in prepositions. So let's begin. Don't worry, this is very simple topic. Let's begin. First we will discuss these that where we use at. We use at for smaller places. Smaller places, take an example. I live in JNB colony. I am in or at school. Now here you think that I have used school. School is a small place. So why I am using in? We have to use at. No. There are some names for which we have to write. Means in that such words are like this. In which your choices means your choices there you have to write in or at. Means if I'm taking this and I my teacher has told me to write the preposition, so I can write in also and at also, because in word is not wrong for using school word, but not at all means in all words means in all these smaller places we can't use in. Only in school word we can write in, means we can use. Okay, our second point says that we use at with price or rate. Price or rate means the cost of that. If means take an example. Milk sells at rupees 40. I bought this marker. I bought this marker in rupees 25. I bought this marker at sorry, not in, at. I bought this marker at rupees 25, and here also we are going to use at. Milk sells at rupees 40. Now here why we use at? Why we use at before the rate? Rate, or we can say price. Why? Because here I have told you that second point says we use at with price or rate of anything. Means if you are buying a car and then you have to say to your friend that I have a car which my father bought at rupees 12,000, means if you are saying the rate or price of anything, like I've given more example of car that you have to tell the rate or price to your friend. So when you are telling the rate or price, you have to use at before that price. Our third point says that we use at with festival or event. Now we know festivals and event, but some people says that why we are using the at with festival event. Let's explain. Means I will explain you now. See the example. We fire the crackers at Diwali. My mother gifted me a beautiful dress at my birthday. Now here you can see Diwali is the festival and birthday is the event. Now some people says that we fire the crackers in Diwali. The festival is Diwali. In Diwali, can you just suppose? Can you understand this night? The festival is Diwali in Diwali. No, at Diwali. On the festival at Diwali, not in the festival at Diwali. And just take a second example. My mother gave me a dress at my birthday. I used at because birthday is an event. Now some people also says that my mother gifted me a dress on my birthday. Can you just suppose that how it is? How can you place the own preposition with my birthday? Because birthday is an event. Suppose that this is the
put ad with festival and event. Now I will going to explain you in Hindi to understand easily. Let's begin. अच्छा, मैंने ना एक वीडियो भी डाली थी जिसके अंदर हमने सीखा था कि इनका प्रयोग क्या होता है। देखो कि अब आज हम बात करेंगे कि एट का प्रयोग, यानी कि प्रेपोजिशन हम जो एट एक प्रेपोजिशन है और हम उसका कब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एट तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी छोटी जगह हो, यानी कि जैसे मान लो कि अपने इंडिया का यूज कर रहे हैं, इंडिया ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम इनका एक तो और भी पॉइंट है कि इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई एक बड़ी जगह हो। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई थी। और जो ऐड का प्रयोग करते हैं जब एक कोई भी स्मॉलर प्लेसेस हो। तो यदि आप ऐसी मिस्टेक मत करो, क्योंकि यदि अगर आप ऐसे लिखते हो एट इंडिया तो वो क्या है, वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, एक बड़ी जगह है, एक बड़ी जगह है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करते हैं इंडिया के अंदर दिल्ली, यानी कि अगर मान लो आप कोई भी दूसरे कंट्री में हो, कोई भी कंट्री में, मान लो यही मान लो कि आप पाकिस्तान में हो, तो अगर पाकिस्तान में हो और आपको ये बताना है कि मैं इस कंट्री में रहता हूँ, मैं इस कंट्री में रहती हूँ, लेकिन इस कंट्री के अंदर भी दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। अगर अपने बात करते हैं कि ये इंडिया है और इस इंडिया के अंदर हम इस दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तब हम उस टाइम भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इनका तो प्रयोग करेंगे इंडिया के, लेकिन इंडिया के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए हम प्रयोग करेंगे ऐड का। अब ना ये भी है कि अगर मान लो अपने इंडिया और किसी का भी यूज नहीं करते, सिर्फ दिल्ली की बात करेंगे, सिर्फ दिल्ली की बात, दिल्ली की बात करेंगे, उस टाइम हम मतलब ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे, उस टाइम हम इनका प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यदि हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो क्या हो गई, बड़ी जगह हो गई। लेकिन यदि अपने बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर रोहिणी, ठीक है, यदि अपने बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर रोहिणी, मैं आपको बता दूं रोहिणी एक जगह है दिल्ली के अंदर, और वो जगह मतलब छोटी है, वो छोटी सिटी है, छोटी स्टेट है, तो मतलब वो छोटी जगह है ना, वो भी दिल्ली के अंदर। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया कि जब अपने सिर्फ दिल्ली की बात करें तो हम इनका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली क्या है, बड़ी है, रोहिणी क्या है, छोटी जगह है। तो यदि अपने बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर रोहिणी में, तो हम क्या करेंगे, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, मतलब मैं रोहिणी में रहती हूँ, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब इसका जैसे कि अपने एक और उदाहरण ले लें, आई एम इन और एट स्कूल। यहाँ पे अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो मैं स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इन क्यों लगाऊंगी? मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स भी हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, जिनके अंदर इनका प्रयोग हो सकता है, उसके अंदर आपकी चॉइस होती है कि आप इन लगाओ या ऐड लगाओ। यहाँ पे मेरी चॉइस है, मैं ऐड लगाऊंगी, आपकी चॉइस हो, आप इन लगाओगे। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनका प्रयोग करना गलत नहीं माना जाता। लेकिन यही नहीं कि सारी स्मॉलर प्लेसेस पे आप इनका यूज करोगे, नहीं, सिर्फ कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होते हैं जिनके अंदर आप इनका प्रयोग अपनी चॉइस से कर सकते हो, ठीक है, और वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं मेरी इच्छा से मैं ऐड का यूज करूंगी, आपकी चॉइस हो, आपकी इच्छा हो तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। जब हम ऐड के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि कोई भी प्राइस और रेट मतलब उसकी कीमत, प्राइस और रेट का मतलब क्या होता है, कीमत। अपने एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है कॉस्ट। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपने दो। मिल्क सेल्स एट ₹40, above this markup at ₹25। मतलब कि जो दूध है वो कितने रुपए में बिक रहा है,
वो 40 रुपए में बिक रहा है, यानी कि 40 रुपीज में बिक रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी प्राइस है। ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क की प्राइस, कॉस्ट, रेट, मतलब अपने एक वर्ड कह सकते हैं, प्राइस, रेट, कॉस्ट, इनका एक ही मतलब होता है कीमत। यानी कि अपने यहाँ पे मतलब मिल्क की प्राइस बता रहा है कि 40 रुपीज है। तो जब भी किसी भी चीज की कोई प्राइस बताई जाए, कोई भी प्राइस बताई जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, एट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिल्क सेल्स एट ₹40। मैं यहाँ पे मिल्क तो लिख रही हूँ, लेकिन मैं उसकी कीमत बताना चाहती हूँ। तो कीमत जब भी मैं लिखूंगी, उसकी जब भी उसका प्राइस लिखूंगी, तो उससे पहले क्या लिखूंगी, एट यूज करूंगी। ठीक है, उसके अलावा हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज करेंगे। सेकेंड है, मैंने ये है मार्कर, ये जो मैंने मार्कर खरीदा है, उसकी कीमत क्या है, 25 रुपए, यानी कि 25 रुपीज है। यानी कि ये जो मार्कर है ना, ये वाला मार्कर जो है, इसकी कितनी प्राइस है, कितनी कीमत है, 25 रुपीज। तो यदि अपने ऐसे बात करें, आई बॉट दिस मार्कर एट ₹25। यहाँ पे भी अपने एट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ₹25 है वो क्या है, एक प्राइस है, एक कॉस्ट है, एक रेट है, किसकी, मार्कर की। और सिर्फ इनके बारे में नहीं, कोई भी, जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दे दूं कि आपके पापा ने एक मतलब बहुत बढ़िया एक कार खरीदी है, वो भी आपके लिए, और आप ये बात अपने फ्रेंड्स को बताना चाहो, मतलब एक फ्रेंड है आपका कोई, और आप उसे बताना चाहो, और तो आप क्या लिखेंगे कि माय फादर बॉट अ ब्यूटीफुल कार फॉर मी एट ₹12,000 एट ₹30,000। ऐसा आप रेट बता सकते हैं। यानी कि मेरे फादर ने मेरे लिए क्या खरीदी, एक बहुत अच्छी कार खरीदी, जिसकी क्या कीमत है, 30,000, यानी कि 30,000। ठीक है, तो यही है अपना ये जो थर्ड वाला एट का जो प्रयोग है, वो कहता है कोई भी फेस्टिवल या कोई भी इवेंट। अब ये जो टॉपिक होता है ना, इसके अंदर आप लोग ज्यादा गलतियां करते हैं, और वो गलती ये है कि जैसे कि एक बार उदाहरण ले लेते हैं, वी फायर द क्रैकर्स एट दिवाली, माय मदर गिफ्ट मी अ ड्रेस एट माय बर्थडे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसी ये जो फेस्टिवल या इवेंट के बारे में जब अपने बात करते हैं, तो आप लोग कई गलतियां करते हैं। जिनको पता होता है वो तो ऐसी गलती नहीं दोहराते, नहीं करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होता वो बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, और इससे वजह से उनके जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। गलती ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे बात करते हैं, वी फायर द क्रैकर्स एट दिवाली, आप लोग क्या कर देते हैं, ऑन दिवाली। भाई जो दिवाली एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल के ऊपर तो अपने मतलब क्रैकर्स थोड़ी ना करते हैं, वो जो फेस्टिवल है उस पे अपने करते हैं, मतलब जो फेस्टिवल आया है अपने, मतलब उस फेस्टिवल के लिए मतलब अपने क्रैकर्स जला रहे हैं, क्योंकि उस फेस्टिवल पे क्या है, क्रैकर्स जलाते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं है कि जो क्रैकर्स है, जो पटाखे हैं, वो हम किसके ऊपर करते हैं, दिवाली के ऊपर करते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, मतलब आप जब दिवाली है उसके ऊपर तो पटाखे नहीं फोड़ते ना। एट जब हम फेस्टिवल या इवेंट के बारे के लिए जो अपने एट लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट, यानी कि सिर्फ दिवाली पे। क्या आप कह सकते हैं कि अपने होली पे पटाखे छोड़ते हैं और दिवाली पे होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं? नहीं ना। तो वही है कि एग्जैक्ट अपने ये दिवाली जो है वो एग्जैक्ट, मतलब अपने दिवाली पे क्रैकर्स मतलब जलाते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट करने के लिए अपने ऐड किया। अपने ना ही ओन करेंगे, ओन का मतलब क्या हो गया, दिवाली के ऊपर, और इन भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन क्या हो गया, दिवाली के अंदर नहीं, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो यानी कि एट यहाँ पे क्या आया है, एग्जैक्ट दिवाली में जो अपने क्रैकर्स जलाते हैं उसके लिए। यहाँ पे भी अगर जैसे बात करते हैं ना, आई लिव एट जेएनवी कॉलोनी, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एग्जैक्ट बता रहा है कि अपने कहाँ रहते हैं, जेएनवी कॉलोनी में रहते हैं। कोई भी मतलब साधु क्लब में रहते हैं, कहीं पे भी, मतलब मैं बीकानेर में रहते हैं ऐसे, मतलब और यहाँ पे अपने बीकानेर में बीकानेर के लिए कभी भी ऐड मत यूज करना। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कि इंडिया के अंदर बीकानेर, तब तो यूज करोगे।
बोलोगे आई लिव एट बीकानेर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया बड़ी हो गई और बीकानेर क्या हो गया, छोटा। लेकिन अगर आप सिर्फ बीकानेर के बारे में बात कर रहे हो तो आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे, मीन्स इनका प्रयोग तो करेंगे, एट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक और मैंने लिया हुआ है, ये तो बात हुई थी फेस्टिवल की। अब आता है माई मदर गिफ्ट मी अ ड्रेस एट माई बर्थडे। अब जो बर्थडे है वो एक क्या है, बर्थडे एक इवेंट है। क्या है, इवेंट। यहाँ पे भी कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं तो एट लगाई, मैं ही नहीं, आप लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि क्या है, ये एक इवेंट है। लेकिन कुछ लोग यही गलती दोहरा देते, जैसे कि मैंने इसमें बताया था My mother gave me a dress at my birthday, यानी कि मेरे बर्थडे के अंदर गिफ्ट किया मुझे ड्रेस। क्या सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा कि ये मेरा बर्थडे है, बर्थडे के अंदर ड्रेस को गिफ्ट किया मेरी मम्मा ने, नहीं। तो यही है कि हम एट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो एट है वो एग्जैक्ट बता रहा है कि मेरी मदर ने मुझे एक गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया, एक ड्रेस की, वो भी किस पे, मेरे बर्थडे पे, क्योंकि बर्थडे क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। क्या हो गया, एक इवेंट। Now we will talk the use of act with activity. In this also, you people make the mistake, like the mistake which I have told you in the use of act with festival and event. Just like that, you don't have to do this mistake again. That is, she is good at dancing. Sinu is good in painting. Sorry, not in painting. It is at painting. At painting. Now, you people in this in the use of at with activity, in this also you people make the mistake like that, the which you make the mistake in the use of at with festival and even. Just like that, you write she is good in dancing. In the dancing, no, at dancing. The at word is particular, makes the particular, telling the particular that she is good in what, at dancing. Sinu is good at painting, means here Sinu is a person and she is good at painting. Now we are not going to write Sinu is good in painting, which the painting which she has made, in that we are not telling that she is good in that painting. No, the at word is that telling exact that Sinu is good at painting. Okay, I hope guys you would satisfied from this part. Please like and subscribe and thank you. Bye bye.